Assalamu alaikum dear student, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra, and today we are having the 13th lecture of Linear Algebra. In the last lecture, which was the 12th lecture of Linear Algebra, we have studied very important result which we call the invertible matrix theorem, in which certain statements, 12 statements were logically equivalent. अब logically equivalent statements जो है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी. अब जो है उसके बाद हमने पार्टीशनिंग ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. व्हाई वी शुड स्टडी द पार्टीशनिंग ऑफ अ सर्टेन मैट्रिक्स, इसके लिए फिजिकल मोटिवेशन जो मैंने आपको बताई थी कि फिजिकल प्रॉब्लम्स जिनको जब मैथमेटिकल मॉडल किया जाए एंड दे गिव अस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दे आर नॉट एज सिंपल एज वी आर स्टडिंग इन दिस कोर्स. फॉर एग्जाम्पल उनकी 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स नहीं होते. A physical problem arising from a physical real world application or problem can have, let's say, 500 equations and 600 variables. अब ये 500 by 600 का मैट्रिक्स जो है, it's a large matrix. We cannot compute physically. A human being, it is quite difficult for a human being to solve such a system which has 500 equations and 600 variables. Of course, we solve such a system by a machine or by a computer. अब कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटेशनली कॉस्ट जो है वो बड़ी मैटर करती है. We cannot allow computer to solve a system of linear equation in which he has to do billions of arithmetic operations. That's why जब भी फिजिकल प्रॉब्लम से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अराइज होती हैं तो उनका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है उसमें बड़ी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मे बी a part of the matrix of coefficient which has order 500 by 600 has a small part, let's say 50 by 50 small part of that matrix which consists of zeros. So rather than कि कंप्यूटर हमारा जो है वो each time 50 by 50 small part जो है हमारे large matrix का उसके लिए compute करे, we denote that small part a partition of the matrix of coefficient which have order 500 by 600 for example. इसीलिए हम मैट्रिक्स की पार्टीशनिंग जो है हमने डिफाइन की थी. हमने सम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था. सम और मल्टीप्लिकेशन जो है एज यूजुअल मैट्रिक्स की होती है उसी तरह ही हमने डिफाइन किया था. उसके बाद वी हैव स्टडीड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. यू आर गिवन अ मैट्रिक्स. हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस जो हैं वो डिफाइन किए थे. और एक गिवन अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया हो, हाउ टू डीकम्पोज दैट मैट्रिक्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सच अ मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के नीचे जो है नॉन जीरो एलिमेंट हो और ऊपर जो है जीरोज हों. सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर नॉन जीरो हों और नीचे zeros elements हों. Such a matrices are known as lower triangular matrix and upper triangular matrix. अब given matrix है उसको हमने सीखा था at the end of the lecture how to decompose that matrix into two matrices. One is lower triangular matrix and the other is upper triangular matrix. And why we have studied this concept, the decomposition or factorization of a given matrix, इसको हमने क्यों स्टडी किया था? Because we have noticed that if we are given the factorization of a given matrix for a system of linear equation, then we need less arithmetic operations for solving the system of linear equation. That's why we are interested in the study of factorization of a given matrix into lower triangular matrix and upper triangular matrix. And of course, a matrix A equals the product of the lower triangular matrix and upper triangular matrix. L और U जो हमने नाम रखे थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें by matrix multiplication, then you will get the matrix A जो कि आपका matrix of coefficient था in the system of linear equation. आज के लेक्चर में throughout the course of the linear algebra मैं आपको spaces के बारे में बताता आया हूँ.
और स्पेसेस के बारे में मैंने आपको, हमने सो फार वी हैव स्टडीड ओनली द आर एन स्पेसेस, और इसको मैंने आपको इनफॉर्मली कहा था कि स्पेस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाइंग सर्टेन एक्सियम्स। व्हाट आर दीज एक्सियम्स, इसको मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी करना है। आज हम आर एन स्पेसेस जो हमने डिफाइन की थी उनकी आज के लेक्चर में सब स्पेसेस, सर्टेन सब स्पेसेस जो हैं वो डिफाइन करनी है, सब स्पेसेस ऑफ आर एन। So in the 13th lecture, as usual, I will start my lecture by solving one of the practice problem, and then we will move to the new topic, which is the subspaces of the space Rn. What are these subspaces we have to learn, and what is the criteria for a certain subset of a space to be called a subspace of that space? ये criteria जो है आज के lecture में हमने study करना है. So let's start the lecture. Today we are having the 13th lecture of linear algebra, and as usual I am going to start my lecture with some practice problem, solution of some practice problem. Find LU factorization of the matrix A. अब LU factorization हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये LU factorization पढ़ी थी कि A आपका जो है A can be factorized into L into U if we are able to find out the matrices A equals L into U. अब A यहाँ पे ऑर्डर इसका 3/3 ऑर्डर है. What will be the order of L? L का भी ऑर्डर 3/3 होगा और U का भी ऑर्डर 3/3 होगा. अब एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, दैट वाज सेइंग दैट रो रिड्यूस U in fact था U. What was that matrix? Upper triangular matrix. In fact, that matrix was the echelon form of the given matrix A. U इसके इक्वल था. अब L जो है, L का ऑर्डर 3/3 होगा, तो L को मैं सपोज कर लेता हूं इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बिकॉज इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो डायगोनल एलिमेंट से यहाँ पे मैंने डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द स्टैटिक के कोरस्पॉन्ड मैंने एलिमेंट्स जो हैं डिसाइड करने हैं, व्हाट शुड बी एलिमेंट हेयर और किस तरह, और ये डायगोनल है तो यहाँ पे भी 1 होगा. इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू दीज 3 स्टैटिक, आई हैव टू फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स. और वो एल्गोरिथम मुझे क्या कह रहा था कि ए को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड पुट हेयर दीज एलिमेंट्स, सच एन एलिमेंट whenever you are reducing your A into echelon form. A को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1, -1, 2, 1, -3, 1, 3, 7 and 5. अब इसको मैंने echelon form में कन्वर्ट करना है, तो मुझे रो ऑपरेशन क्या करने पड़ेंगे, R2 minus R1 and I have to make this element also 0, R3 minus 3 times R1, and my matrix will be reduced into 1, -1, 2, 0. I have to simply subtract. Here I will have -2, here I will have -1, and here I will have 3 times subtract करना है 0, 3 times subtract करने से मेरे पास 7 plus 3 that is 10 मेरे पास आ गया, और 5 -6 here I will have -1. ये तो मेरा U का प्रोसीजर है, एल्गोरिथम का स्टेप्स हैं कि A को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बिकम योर U. अब सेकंड स्टेप क्या था एल्गोरिथम का? सेकंड स्टेप ये था कि वी हैव टू पुट सच अ एंटिटी हेयर, स्टैटिक पे ऐसी एंट्री जो है वो हमने लिखनी है कि ये जो रो ऑपरेशन हमने किए हैं, 2 रो ऑपरेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर यही रो ऑपरेशन मैं L पे करूं, देन L शुड बी रिड्यूस्ड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अगर यही रो R2 minus R1, मैंने यहाँ पे वो एंट्री लिखनी है कि R2 minus R1 करने से यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 0 आए. So I have to put here मेरे L में यहाँ पे 1, 0,
0, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 लिखूंगा तभी R2 माइनस R1 करने से ये एलिमेंट मेरा 0 हो जाएगा एंड देन that will be my first step towards the equivalence of that L to the identity matrix of order 3 in this particular example. अब सिमिलरली यहां पे मैंने क्या करना है कि ये रो ऑपरेशन करने से मैंने ऐसी एंट्री यहां पे लिखनी है कि ये R3 माइनस 3 टाइम्स R1 ऑपरेशन L पे करने से मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, तो यहां पे भी 0 आना चाहिए, सो आई विल पुट हेयर 3. अब अगर यही दो रो ऑपरेशन मैं इस पे करूं तो मेरा ये एंट्री भी 0 होती है और ये एंट्री भी 0 होती है, ठीक है. नेक्स्ट आई विल पुट दिस वन हेयर 1 एंड आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू पुट हेयर इन दिस मैट्रिक्स. अभी ये वाला मैट्रिक्स जो है ए एचिलॉन फॉर्म में भी नहीं आया था, इसको एचिलॉन फॉर्म में लाने के लिए नेक्स्ट मेरा क्या होगा रो ऑपरेशन, माय रो ऑपरेशन विल बी R3 प्लस 5 टाइम्स R2, क्योंकि ये 10 को मैंने 0 करना. वी हैव डन दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. -2 -1 एज इट इज एंड दिस विल बिकम 0 एंड -1 minus 5 that will be -6. अब ऐड करने से my this matrix is in echelon form, so this forms U. ये मेरा U बन गया. अब ये मैंने रो ऑपरेशन किया. अब यही रो ऑपरेशन यहां पे L में मैंने यहां पे वो एंट्री स्क्वायर में लिखनी है कि यही रो ऑपरेशन अगर मैं करूं तो that will become as 0. ठीक है, पहला रो ऑपरेशन ये करने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दूसरा रो ऑपरेशन. अब ये मेरा थर्ड रो ऑपरेशन है. अब यहां पे ऑफ कोर्स अगर यहां पे 0 0s हो पहले दो रो ऑपरेशन करने से, तो यहां पे मेरा क्या एलिमेंट आना चाहिए कि ये जो है 0 फॉर्म कर ले, क्योंकि I3 क्या होता है, I3 जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है. सो आई विल पुट हेयर -5. So this is my L, this is my L and this is how you construct the L. U तो आप easily construction U की है कि आप A given matrix है उसको echelon form में ले आए, that will be your U. अब L की एंट्रीज किस तरह करनी है, L की एंट्रीज इस तरह फिल करनी है कि जो आपने रो ऑपरेशंस फॉलो किए हैं to get the echelon form from the matrix A, वही रो ऑपरेशंस अगर L पे करें तो L should be equivalent to matrix identity matrix of that order. अब इस L पे अगर आप ये 3 रो ऑपरेशन करें 1 2 3 रो ऑपरेशन करें तो that will be row equivalent to the I3. करके देखें इस पे, you have to check it. पहला रो ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस R1 करें, R2 माइनस R1 करें, ये 0 हो जाएगा. R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करें, ये 0 हो जाएगा, बाकी एंट्रीज सेम रहेंगी. थर्ड रो ऑपरेशन करें इस मैट्रिक्स L पे, R3 प्लस 5 R2 आपका ये 0 हो जाएगा एंड योर मैट्रिक्स विल रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यू कैन चेक दैट A in fact equals L into U. And if you are given a system of linear equation AX equals B, then you can solve this system of linear equation by less arithmetic operations as compared to the augmented matrix technique whenever you are given the L and U factorization of A. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि LU फैक्टराइजेशन था. अब मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम से 2 और क्वेश्चंस जो हैं वो पिक किए हुए हैं जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम की एप्लीकेशन है. अब इस स्लाइड में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी मैंने दी हुई है, ये स्टेटमेंट है आपकी. और क्वेश्चन है कैन अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद 2 आइडेंटिकल रोज बी इन्वर्टिबल. इसका मतलब ये है कि कैन A इनवर्स एग्जिस्ट or not. You have to answer it and you have to justify your answer. And matrix A की 2 रोज जो है आइडेंटिकल हैं. अब आइडेंटिकल रोज होंगी, आपने क्या यूज करना है, इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम.
इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम की ये स्टेटमेंट्स हैं विच आर 12 लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अब पहले आप ये नोटिस करें कि अगर ए में लेट्स से व्हाट एवर द ऑर्डर ऑफ ए इज, लेट्स से दो रोज जो हैं वो इक्वल हैं, ai1 ith रो ain, और एक और रो जो है नेक्स्ट रो ही ith प्लस 1th रो ai प्लस 1 टू ai प्लस 1 इंटू n. ये दो रोज सेम है. जब आप रो ऑपरेशन इसका करेंगे एचिलॉन फॉर्म में लाने के लिए, इसको जीरो करेंगे तो ये दोनों नंबर्स इनफैक्ट सेम है. तो ये क्या आपके पास बाकी वट एवर रोज हो मैट्रिक्स की, वी डोंट केयर, ये क्या आ जाएगा ai1 ai2 up to so on ain, and because these are the same rows, identical rows, तो जब आप रो ऑपरेशन करेंगे तो इट विल बी जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि आपके मैट्रिक्स ए में एक ऐसी रो है जिसमें विच हैज नो पिवट एलिमेंट, जिसका कोई पिवट एलिमेंट इसमें नहीं है, पिवट पोजीशन नहीं है इस रो में. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो इसमें पिवट पोजीशन एक तो कम हो गई ना, n पिवट पोजीशन तो नहीं हो सकते ना, ज्यादा से ये हो सकते हैं वी कैन हैव एट मोस्ट n-1 pivot positions or pivot element. Now let's come to the theorem. Theorem की third statement है A is invertible. All these statements are logically equivalent. A has n pivot position. लेकिन अगर दो identical rows हों, हमने तो ये अभी नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि एक ऐसी रो आ जाएगी एचिलॉन फॉर्म में विच हैज नो पिवट पोजीशन, और अगर ए का ऑर्डर n है तो ए की मैक्सिमम पिवट पोजीशंस जो हैं वो हो सकती हैं n-1, n के इक्वल तो कभी नहीं हो सकती. सो वी विल कंक्लूड दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो फॉल्स. अब ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए इट मीन्स ए इनवर्स is not possible. और हमने नाम भी रखा था, इनफैक्ट सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो A is a singular matrix for this question, and this is the justification that the pivot elements, the maximum pivot elements for a matrix having two identical rows is one less than the order of that matrix. अगर order n है तो n-1 pivot positions हो सकती हैं. Hence A is not invertible by invertible matrix theorem. Can a square matrix with two identical columns be invertible? Justify your answer. अब हमने ये देखना है, it's the similar way and I will leave it as exercise. Can a square matrix, अब two columns जो हैं वो identical हैं and you have to just find out one statement here that the columns of A are linearly independent. अब अगर दो कॉलम्स सेम हों तो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं, कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते क्योंकि दो कॉलम्स सेम है. लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमने कहा हुआ है कि वेक्टर्स C1 V1 प्लस सो ऑन Cn Vn इक्वल 0. दिस वेक्टर इक्वेशन शुड हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली. अब अगर दो वेक्टर्स कोई से भी सेम है, लेट्स से Vi और Vj सेम है, बाकी तमाम के कोफिशिएंट 0 कर दें, Vi माइनस Vj इक्वल 0, ये तमाम लीनियर कम, ये आपका एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल गया ना इसका. ऑल अदर कोफिशिएंट C1 C2 C3 ऑल अदर Ci's आर जीरोस एक्सेप्ट Ci जो है वो आपका 1 है और Cj जो है वो -1. आई लीव इट for your observation and for your thinking that you should think and get the answer of this one and you have to write some sentences. Hint मैंने दे दिया है कि fifth statement जो है ये false होगी, hence A inverse is not possible. So let's start the today's lecture.
आर एन स्पेस जो है ये हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में, और उनकी कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज भी थी। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज क्या है? यू वी डब्ल्यू, जस्ट इट्स अ रिकॉल कि आर एन जो है ये 8 प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई करते हैं। एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था दैट्स व्हाई वी कॉल आर एन अ वेक्टर स्पेस। अब ये वेक्टर स्पेस जो है इसकी डेफिनेशन जनरली हम जो है वो सीखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन इसी तरह की ऑलमोस्ट मोर और लेस सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं यही एक्सियम्स होंगी। तो आर एन इज अ स्पेस। अब अगर यू और वी कोई से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स बिलोंग्स टू आर एन है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि स्पैन ऑफ यू वी, लेट से 2 वेक्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, स्पैन ऑफ यू वी ये सबसेट होगा आर एन का, ठीक है, ये सबसेट होगा। और ये सबसेट किस तरह का होता है? जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ यू एंड वी, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ यू एंड वी सच टाइप ऑफ वेयर C1 एंड C2 बिलोंग्स टू R। अब ये सबसेट है जो प्रॉपर्टीज आर एन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन अराइजेस, जो प्रॉपर्टीज आर एन सेटिस्फाई कर रहा है, दीज प्रॉपर्टीज, ये सबसेट है इसका, क्या ये सबसेट भी यही तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा? तो अब मैं ये तो स्पैन एक पर्टिकुलर सबसेट लिया है ना, अब आर एन का एज कोई भी सबसेट हो आर एन का, whenever we will say that this set H, all the elements of H also satisfy all these axioms, then we will say that H is a subspace of Rn। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अभी हम करते हैं। तो सबस्पेस ऑफ Rn क्या है कि Rn का कोई भी सबसेट जो कि आर एन जो एक्सियम्स ये मैंने लिखी हुई हैं इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम कहते हैं कि ये सबस्पेस है। अ सबस्पेस, ये फॉर्मल डेफिनेशन है सबस्पेस की। अ सबस्पेस ऑफ आर एन इज एनी सेट एच इन आर एन, ऑफ कोर्स एच इज अ सबसेट ऑफ आर एन, दैट हैज 3 प्रॉपर्टीज। जीरो एलिमेंट एच में होना चाहिए, द जीरो वेक्टर इज इन एच, क्योंकि जीरो वेक्टर होगा तभी तो पिछली स्लाइड में जो है जीरो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। फॉर ईच यू एंड वी टेक एनी 2 वेक्टर्स ऑफ एच, देयर सम शुड आल्सो बी इन एच। यू वी बिलोंग्स टू एच implies their sum u plus v also belongs to H. The third property, for each u in H and each scalar C, the vector Cu is in H. The vector Cu belongs to H whenever C belongs to real number है और U belongs to H है, then we should have this implication that Cu vector वो भी H में ही होता है। अब कोई भी सबसेट हो Rn का जो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, उसको वी विल से दैट दिस इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। एंड ये 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता होगा तो पिछली स्लाइड में जो 8 प्रॉपर्टीज थी ना Rn स्पेस की, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता हो। एंड वी कैन शो इट फॉर्मली, इसको फॉर्मली प्रूव किया जा सकता है, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स। दैट्स वाई मैं सिर्फ आपको ये हिंट दे रहा हूं कि वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। अब एग्जांपल, हमने ये पढ़ा था कि अगर आर एन में से कोई से भी 2 वेक्टर्स हों और स्पैन उन 2 वेक्टर्स का लिया जाए, स्पैन यू वी, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ आर एन। इन फैक्ट दिस सबसेट satisfies these condition and span is always a subspace of Rn। अगर मैं R3 में चला जाऊं, R3 के कोई से भी 2 वेक्टर्स दिए गए हों जो कि मल्टीपल ना हो U and V, such that U and V are not multiple of each other,
देन स्पैन ऑफ u एंड v, इसकी ज्योमेट्री हमने पढ़ी हुई है कि दैट विल बी अ प्लेन फॉर्मिंग बाय द वेक्टर्स u एंड v इन R3। ये एक प्लेन होगा, ठीक है। तो स्पैन जो है हमने डिसाइड कर लिया कि ये सबस्पेस होती है Rn की, तो प्लेन जो है वो क्या हुआ, सबस्पेस हुआ Rn का। और ये प्लेन कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, बिकॉज नल वेक्टर ऑलवेज बिलोंग टू दिस वन। स्पैन में लेट्स सी कि ये तीन प्रॉपर्टीज जो है स्पैन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नल वेक्टर शुड बी इन H। अब अगर H स्पैन ऑफ UV है, तो अगर मैं C1 इक्वल C2 0 ले लूं, तो 0 इंटू यू प्लस 0 इंटू वी, आंसर नल वेक्टर ही आएगा ना। तो नल वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है ना, C1 C2 इक्वल 0, ये सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो नल वेक्टर जो है वो स्पैन में चला गया ना, स्पैन ऑफ UV। अब मैंने चेक करना है कि सपोज U1 या U और V ही आप कह लें, UV बिलोंग्स टू स्पैन है, या U1 V1 कह लें, इट्स बेटर, क्योंकि UV पहले ही मैं वेक्टर्स दे रहा हूं। तो U1 क्या होगा, U1 विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन, इट मींस C1 U प्लस C2 V होगा। V1 भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा U और V का, फॉर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स मैं C1 डैश कह लेता हूं U प्लस C2 डैश V। अब इन दोनों का सम हमने देखना है सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, U1 प्लस V1 C1 U प्लस C2V प्लस C1 डैश U प्लस C2 डैश V। अब U1 प्लस V1 जो है ये स्पैन में अगर जाएगा, अगर इफ I am able to write down this U1 plus V1 as linear combination of U and V, तो वो हम देख लेते हैं इजीली। we can write it as C1 plus C1 dash U plus C2 plus C2 dash V। अब C1 C1 dash C2 C2 dash ये कांस्टेंट थे, तो उनका सम भी एक कांस्टेंट रियल नंबर ही आएगा। Let's say this real number C3 dash। अब ये हमने क्या लिख दिया, U1 प्लस V1 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया U एंड V का। So we have taken arbitrary element U1 and V1, ये दो arbitrary element लिया, उनका सम लिया, वो भी स्पैन में। Similarly we can check by default, by definition CU, अगर C स्केलर है और U H में है, CU भी H में ही होगा, ठीक है। All three properties are satisfied by span, so span of any space of vector is a subspace of that space from where the vectors are taken, ठीक है जी। जैसे R3 पर्टिकुलर केस में कोई से दो वेक्टर्स हैं विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, वो अगर दिए गए हैं तो उनका स्पैन जो है वो सब स्पेस है, एंड दैट स्पैन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो सब स्पेस की डेफिनेशन होगी और एग्जांपल होगी। अब एक एग्जांपल ऐसी जो कि सब स्पेस नहीं है, अ लाइन L नॉट थ्रू द ओरिजिन इज नॉट अ सब स्पेस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। अब एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही, वो सब स्पेस नहीं है, क्योंकि सब स्पेस होने के लिए नल वेक्टर बिलोंग्स टू H होना चाहिए। अब ये लाइन जो है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन दे फॉर्म अ सेट, और उस सेट के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं कि वेदर इट इज अ सब स्पेस और नॉट। ऑफ कोर्स ये ओरिजिन से पास ही नहीं कर रही, ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो जीरो नहीं है इस सबस्पेस में, सबसेट में। तो जीरो अगर सबसेट में नहीं है तो इसका मतलब है पहली एक्सियम फॉल्स होगी, तीनों में से कोई भी एक एक्सियम फॉल्स हो जाएगी, यू विल लीव इट। द सेट H कैन नॉट बी अ सबस्पेस ऑफ द स्पेस। सिमिलरली इस फिगर में आपको दिखाया गया है, अगर U और V लाइन पे ही हों
तो u प्लस वी इज नॉट नेसेसरली ऑन द लाइन, u प्लस वी ये आ रहा है, लेकिन ये फिर सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी जो है वो वायलेट हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि u v बिलोंग्स टू h implies u प्लस v बिलोंग्स टू h। अब ये पॉइंट लाइन पे तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि u प्लस v फॉर अ लाइन is not equal to h, hence not a subspace। तीनों में से कोई एक भी एक्सियम सेटिस्फाई नहीं होता। The subset h cannot be a subspace of the vector space R। R और Rn जो भी स्पेस जिससे भी वेक्टर्स लिए गए। अब सपोज ये दो वेक्टर्स हैं मल्टीपल ऑफ ईच अदर, v2 इक्वल्स k ऑफ v1। अब इनका ग्राफ जो है, स्पैन का ग्राफ क्या होगा, स्पैन ऑफ v1 v2। अब v2 जो है वो मल्टीपल है v1 का, तो स्पैन इनका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये स्पैन जो है ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि ये जो है ये क्या है, सबस्पेस है। सो अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी अ सबस्पेस because it is the span of v1 and v2 whenever v2 is a scalar multiple of v1। तो स्पैन के बारे में कुछ स्पैन सबस्पेस होता है, और सबस्पेसेस हम फर्दर सबस्पेसेस जो हैं वो स्टडी करना चाहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में हमारा मेन टॉपिक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी थी जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन है और वेक्टर इक्वेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर v1 up to so on Vp in Rn, the set of all linear combination, इसी सेट को हम स्पैन कहते हैं, is a subspace of Rn। The verification of this statement is similar to the argument in the previous example, of course, जो मैंने previous example में argument दिया। We shall now refer to span V1 as the subspace or space generated by V1, V2, so on Vp। रिमार्क लिखा हुआ है मैंने एक, नोट दैट आर एन इज अ सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ बिकॉज इट हैज द थ्री प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर अ सबस्पेस। सबस्पेस के लिए अब आर एन जो है उसको मैं सबसेट ऑफ इटसेल्फ आर एन लिख सकता हूं ना, और तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नल वेक्टर बिलोंग टू एच। अब एच हमारा क्या है, आर एन है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि uv for all uv belongs to h implies u plus v belongs to h। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, for all scalar c and u belongs to h, आपका cu belongs to h होना है। These are the three properties। अब Rn a set is subset of itself, ये भी हो सकता है, और empty set is the subset of every set A, ये दो प्रॉपर्टीज है ना। तो Rn अपने आप का भी सबसेट है और ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई भी करता है, तो Rn अपने आप का सबस्पेस हो गया। सेकंड, नल स्पेस जिसे कहते हैं कि एम्प्टी सेट Rn का जो है वो सबसेट होता है और वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इनफैक्ट एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं, द सेट कंटेनिंग जीरो, इसमें जीरो होना चाहिए क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होगी। सो नल वेक्टर एक सेट है, उसमें नल वेक्टर भी है। नल वेक्टर, अ सेट कंटेनिंग द नल वेक्टर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ R and whatever the value of n. So these two spaces, a set containing only null vector, also satisfy these three conditions। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही वेक्टर है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, बिलोंग्स टू दिस वन। अब c इंटू 0, ये 0 होगा, ये भी इसी में आता है। इन दो स्पेसिस को, सब स्पेसिस को, जो कि हर Rn की फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, n पॉजिटिव इंटीजर होता है, इन सब स्पेसिस को हम कहते हैं दीज आर द ट्रिवियल subspaces। So every space Rn
for different values of n has two subspaces, the space itself and a set containing 0. इनको ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं, और एनी अदर देन दीज सबस्पेस वो उसको हम नॉन ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं. ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्योंकि हम ये लीनियर अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं, और लीनियर अलजेब्रा में जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो होती हैं, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमने फॉर्म जो है ax इक्वल्स b पढ़ा हुआ है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेसेस कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट a of a given system of linear equation. The column space of a matrix A is the set denoted by this one. Column space of A is the all linear combination of columns of A. अब all linear combinations उसको हमने span दिया हुआ है. Suppose A आपका matrix है, उसके columns A1, A2 up to so on AN है. तो span of columns of A in fact set है A1, A2 up to so on AN. अब ये अगर A के कॉलम्स जो हैं AIs जो हैं वो Rn से हैं, तो ये Rn सबस्पेस ही होगी ना Rn की. ये स्पैन जो है, ये अगर सेट इसका नाम H में रख दूं तो ये सबसेट होगी Rn की, और स्पैन की मैंने आपको बता दिया स्पैन जो होता है वो सबस्पेस होता है. सो सच अ subspace which has been formed by the span of columns of a given matrix is known as column space of A. ठीक है जी. If A is given by this one with the columns in Rm or Rn, it doesn't matter, m be positive integer n be positive integer, then column of A is the same as span of this one. यही मैंने यहाँ पे explain कर दिया जो कि remark लिखा हुआ. The column space of an m into n matrix is a subspace of Rm, क्योंकि इसमें m into n ऑर्डर है मैट्रिक्स A का. तो आपके पास कॉलम्स कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, लेकिन हर कॉलम में एंट्रीज कितनी होंगी? देयर विल बी A1, suppose C1, C2 up to so on CM. जितनी रोज होंगी उतनी एंट्रीज होंगी ना हर कॉलम में, तो वो तो M है नंबर ऑफ रोज. तो आवर ईच कॉलम, in fact if A has order m into n, then each column belongs to Rm. That will be a subspace of Rm. और ये जो मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, मैंने कॉलम सपोज किए थे Rn में से, तो सबस्पेस Rn होगी. ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल में n ली थी. इट डजंट मैटर. नॉट दैट द कॉलम ऑफ A इक्वल्स Rm. दिस इक्वल्स Rm ये कह रहा है कि स्पैन ऑफ कॉलम्स A1, A2 up to so on AN equals Rm if the columns of A spans Rm. स्पैन का मतलब है कि इक्वल Rm क्यों, और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किया था. अदरवाइज कॉलम ऑफ A इज ओनली पार्ट ऑफ Rm. ये सबसेट होगा अगर ये पूरी Rm है. अगर स्पैन करता है कॉलम्स, A ऐसा मैट्रिक्स है जो कि Rm पूरे के पूरे को स्पैन करता है, तब तो ये स्पेस पूरी बन जाएगी. स्पैन जो है इक्वल हो जाएगा Rm के. ठीक है, यहाँ पे ये m है. और अगर ये इसके कॉलम स्पैन नहीं करते तो कॉलम स्पेस जो है ये इस तरह एक पार्ट होगा कॉलम ऑफ ए, सबसेट ही होगा ना, इसी का नाम हमने स्पैन रखा. ठीक है. इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गिवन अ मैट्रिक्स and a vector b. Determine whether b is in the column space of A or not. In fact, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किए हुए हैं, लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो गई है.
वी आर आस्किंग दैट डिटरमिन वेदर बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। पहले हम ये पूछते थे कि बी इज इन द स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, उसी का नाम तो हमने कॉलम स्पेस रख दिया। अब काम हमने वही करना है जो पिछले लेक्चर्स में हम करते हैं। क्या करना है कि हमने ए एक्स इक्वल्स बी इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है। ए एक्स और एक्स को डिटरमिन करना है, एक्स को डिटरमिन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब स्पैन ऑफ कॉलम्स इसका अगर मैं A1 नाम लूं, A2 नाम लूं, A3 नाम लूं, तो स्पैन ऑफ A1, A2, A3 इसी का ही हमने नाम रखा है कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब स्पैन में कोई वेक्टर B अगर बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस है तो B कुड बी रिटन एज x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3। इस तरह लिखा जाना चाहिए अगर B बिलोंग्स टू स्पैन में है या कॉलम स्पेस में है। तो इनफैक्ट टर्मिनोलॉजीज जो है वो सिर्फ डिफरेंट हुई हैं, मेथडोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। वी हैव टू सॉल्व दिस system. We have to check whether we will be able to find out the x1, x2 or x3 and x3 इन तीनों की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स वी विल टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये सारा ए है और ये बी है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। इसकी एचेलॉन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। एचेलॉन फॉर्म करने के लिए मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है। उसके लिए मुझे रो ऑपरेशन क्या करने पड़ेंगे, R2 प्लस 4 टाइम्स R1 एंड R3 प्लस 3 टाइम्स R1। ये दो रो ऑपरेशन मैं करूंगा तो ये मेरे दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। सो आई डू द रो ऑपरेशन एंड गॉट द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विच इज दिस वन 1 0 0 एंड दीज एंट्रीज आर चेंज्ड एंट्रीज। नेक्स्ट पिवट एलिमेंट जो है वो मेरा ये आ रहा है, इसके नीचे मैंने ये जीरो करने हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आई विल डू द रो ऑपरेशन, द थर्ड रो ऑपरेशन विल बी R3 माइनस 1/3 टाइम्स R2 दैट विल मेक दिस -2 एज 0। ये जब मैं रो ऑपरेशन करता हूं तो मेरा अल्टीमेटली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस एचेलॉन फॉर्म में आता है। अब इस एचेलॉन फॉर्म से मुझे क्लियरली आई हैव 1 रो 0। अगर मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करूं सो आई विल हैव x1 माइनस 3x2 माइनस 4x3 इक्वल्स 3 एंड माइनस 6x2 माइनस 18x3 इक्वल्स 15। सो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस 18x3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6। सो x2 की वैल्यू किसकी वैल्यू लेने से आ रही है, x2 की वैल्यू इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x3। सो x3 इज अ फ्री वेरिएबल, x3 फ्री वेरिएबल आ गया। इसका मतलब है x2 की वैल्यू इधर डाल के x1 की वैल्यू भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ x3 में आएंगी, ठीक है। तो x3 की वैल्यूज हम लेते जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन इस इक्वेशन का, वेक्टर इक्वेशन का आता जाएगा। इसका अगर कोई एक भी सोल्यूशन होता है इसका मतलब ये था कि बी कॉलम स्पेस में है। एक कॉलम स्पेस हमने अभी डिफाइन किया कि स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो कि सबसेट होता है R3 फॉर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में R3 क्योंकि ये वेक्टर्स कॉलम्स जो हैं ये R3 के एलिमेंट हैं। तो ये जो है B बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस हो गया। हमने चेक वही किया, मेथडोलॉजी वही है, लेकिन नाम जो है वो सिर्फ चेंज कर दिया क्योंकि कॉलम स्पेस ऑफ ए is the subspace of R3 for this example spanned by the columns of A। ठीक है, इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास AX इक्वल्स B, ये सिस्टम जो था ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसके कोरस्पॉन्ड अगर AX इक्वल्स 0, इसको हमने रखा था नाम होमोजीनियस सिस्टम। और इनफैक्ट इन दोनों के दरमियान सॉल्यूशंस का रिलेशनशिप भी है जो हमने स्टडी किया था इन अ लेक्चर।
अब ax इक्वल्स b का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? नल वेक्टर आ रहा है। ये नल वेक्टर ही, और नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर यहां पे कहीं जीरो वेक्टर पड़ा है, यहां पे x है, तो सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम अगर जीरो का जीरो पे जाएगा, और बेशुमार एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये कि होमोजेनियस सिस्टम कैन हैव ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन विच इज 0 0 0, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते थे। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल होना चाहिए, और इन्फिनिट मैनी वेक्टर्स x1 x2 x3 आपको मिलने चाहिए, जिनका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए, नल वेक्टर आना चाहिए। जीरो और नल वेक्टर इज द सेम थिंग। सो अगर मैं कोलेक्ट करूं ऑल द x such that a of x equals 0, in other words, if I collect all the solutions of the homogeneous system of linear equations, then this set is a subspace. ये subspace जो है बनता है, क्योंकि 0 belongs to this set होता है, 0 is in this set, क्योंकि trivial solution होता है। अगर u v belongs to this set होगा, जिसका नाम मैं h रखता हूं, और ये h, देन u प्लस वी भी बिलोंग्स टू h ही होगा, और ये शो किया जा सकता है। सो ऐसी स्पेस होमोजेनियस कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, आप उसका होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम जो है वो लिख लें। होमोजेनियस सिस्टम लिखने से जो सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं, उन सब सॉल्यूशंस का सेट एक बना लें। वो सेट जो है वो भी सबस्पेस फॉर्म करता है, सबस्पेस फॉर्म करता है और सबस्पेस होता है। उस सबस्पेस का नाम हमने रखा है नल स्पेस। और नल स्पेस क्यों रखा है? क्योंकि वी आर कलेक्टिंग ऑल द वेक्टर्स विच मैप्स टू द नल वेक्टर। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या है? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर है। So here is the definition. The null space of a matrix A is the set null A, denoted by this one, of all solutions of the homogeneous equation, this one. ठीक है, यही मैंने आपको explain कर दिया। When A has n columns, the solutions of Ax equals 0 belongs to Rn. ये of course A का order m into n है, तो x हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, x इस सेट में h जो नल स्पेस हमने नाम दिया, तो x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? n into 1 फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपके n कॉलम्स हैं तो नल स्पेस विल बी अ सबस्पेस ऑफ Rn, एंड द नल स्पेस ऑफ A इज सबसेट ऑफ Rn। In fact, null of A has the properties of a subspace of Rn. सबस्पेस इसको कहते हैं, थ्योरम रिजल्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। द नल स्पेस ऑफ एन m into n मैट्रिक्स A is a subspace of Rn. Equivalently, the set of all solutions of the system, जिसका नाम हमने नल स्पेस रखा था, of m homogeneous linear equation in n unknowns is a subspace of Rn. ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेस है नल स्पेस जो है। कॉलम स्पेस भी, कॉलम स्पेस जो हमने पहले ही पढ़ी हुई थी, नल स्पेस जो है ये भी हमने होमोजेनियस सिस्टम के तमाम सॉल्यूशंस किए हैं। होमोजेनियस सिस्टम के तमाम सॉल्यूशंस जो है ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो हमने सिर्फ एक डिफाइन किया है सेट, जितने भी होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस थे उन सब को कलेक्ट कर लिया एक सेट में, और वो सेट जो था वो सबस्पेस फॉर्म करता था। उस सेट का जिसमें सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस सिस्टम के, उस सेट का नाम हमने नल स्पेस रख दिया। अब ये एग्जांपल है। एग्जांपल इज सेइंग दैट लेट A be 1 2 -3 -1 0 -5 5 7 -3। ये 3/3 मैट्रिक्स है, एंड U be -7 3 2। इज U इन नल स्पेस ऑफ A? नल स्पेस जो है इससे डिनोट की जाती है नल स्पेस ऑफ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस मैट्रिक्स A की नल स्पेस जो है, जो कि नल ऑफ A इन फैक्ट x
all element x such that ax equals 0. ये स्पेस जो है ये सबसेट किस स्पेस की होगी? एक्स फैक्टर हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम. अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 है तो एक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/1. तो एक्स का ऑर्डर ये, दिस इज अ कॉलम वेक्टर हैविंग 3 एंट्रीज. तो ये किसका सबस्पेस या सबसेट होगा? R3 का. यस ऑफ कोर्स R3 का. अब एक वेक्टर कोई भी दिया गया है, इस वेक्टर को चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज U in null space of A? अब U will be in null space of A if A of U will be in this set. अगर U इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि A of U should be equal 0, तभी इसमें जाएगा ना नल स्पेस में. नल ऑफ A जो हमने नल स्पेस का नाम रखा है, नल ऑफ A. तो I have to check what is the answer of this matrix multiplication. इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सीखी हुई है. -1 5 2 0 7 -3 -5 -3 ये आ गया. अब वेक्टर -7 3 2. अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है 0 आ जाती है तो आपका वेक्टर U जो है ये नल स्पेस में होगा. ठीक है. अगर ये नॉन जीरो आ जाती है तो ऑफ कोर्स नल स्पेस में नहीं होगा. दो ही पॉसिबिलिटी है. तो अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. -7 -3 +10 फर्स्ट रो कॉलम के साथ, -14 +0 +14 +21 -15 -6. अब ये आप देखें कि ये फर्स्ट एंट्री भी 0 हो रही है, सेकेंड एंट्री भी 0 हो रही है और थर्ड एंट्री भी 0 हो रही है. इट मीन्स A ऑफ U इक्वल्स 0. तो U आपका ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया? नल स्पेस में चला गया. हेंस U बिलोंग्स टू नल स्पेस. इस तरह चेक करते हैं नल स्पेस के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज U इन कॉलम ऑफ A? अब कॉलम स्पेस क्या थी? कॉलम स्पेस ऑफ A इज द स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A. अगर A के कॉलम्स को A1 A2 A3 कह दिया जाए तो A1 A2 A3. मैंने ये चेक करना है कि U बिलोंग्स टू दिस है कि नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये चेक करना है कि C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 इक्वल्स U. इस वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड आई हैव टू फाइंड आउट C1. ये डिटरमिन करना है मैंने, C2 डिटरमिन करना है, C3 डिटरमिन. If I am able to find out these constants, then U will be in column space of A. और कॉलम स्पेस जो है स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A से हमने डिफाइन किया. अब इस वेक्टर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? वो ये 1 -2 -3 -1 0 -5 5 7 -3 -7 3 2. ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. अब ऑफ कोर्स इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यू विल रिड्यूस दैट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचिलॉन फॉर्म और देन you will decide whether the solution of the system of linear equation corresponding to this vector equation exists or not. If the solution exists, then U आपका column space में होगा. अगर solution inconsistent है, exist नहीं करता, then you will be not in the column space of A. And you will be able to solve this one. In fact, we have done a lot of times such type of questions. जिसमें solution system of linear equation का solve करना है, and I am not going to do this one. You have to do it yourself. So do yourself. Okay.
डिटरमिन द नल स्पेस फॉर द मैट्रिक्स दिस वन। अब नल स्पेस को डिटरमिन किस तरह करना है? नल स्पेस को डिटरमिन करने के लिए हम ax इक्वल 0 को सॉल्व करेंगे और तमाम सॉल्यूशंस को इकट्ठा करेंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें तमाम सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स अगर A है, ये A है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये लिखा हो। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि ये आपको दी गई है। और एंड यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट एचिलॉन फॉर्म इज नॉट अ बिग डील नाउ फॉर यू। अब इस एचिलॉन फॉर्म में जब हम कर लेते हैं तो हम इसका होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन लिखना चाहते हैं। तो सोल्यूशन की पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म भी जो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस की, वो हमने सीखी हुई है किस तरह लिखते हैं, वो इनफैक्ट मैं लिखने जा रहा हूं। सेकेंड रो विल कोरस्पॉन्ड टू x3 प्लस 2x4 minus 2x5 equals 0. So my x3 will have minus 2x4 plus 2x5. x3 का ये एक्सप्रेशन आ गया। x4 and x5 are free variables. ये free variables हैं। Similarly मेरी फर्स्ट इक्वेशन से I write that directly x1 equals 2x2 minus 2x3 minus 3x4 प्लस x5। अब x3 की वैल्यू मैं यहां से डालता हूं 2x2 माइनस 2x3 की माइनस 2x4 प्लस 2x5 माइनस 3x4 प्लस x5। अल्टीमेटली मेरा वेरिएबल x1 की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ x2 प्लस 4x कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे माइनस 3 है तो ये प्लस x4 आ गया, यहाँ पे माइनस 4x5 है, यहाँ पे प्लस 5x है तो माइनस 3x5 आ गया। सो आई एम हैविंग दिस एक्सप्रेशन। सो x4 x5 ऑलरेडी डिसाइड किए हुए थे, फ्री वेरिएबल है, क्योंकि x3 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल आ रही थी, तो मेरा x1 की वैल्यूज x4 x5 और x2 भी। सो आई हैव 3 वेरिएबल x2 ऑल्सो, x2 x4 एंड x5। दीज आर माई फ्री वेरिएबल्स। अब अगर ये मेरे फ्री वेरिएबल्स हैं तो मेरे बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? x1 एंड x3। तो मैंने वेक्टर फॉर्म जो है ये अगर लिखनी हो तो मेरा क्या है? x1 x2 x3 x4 x5 प्लस इक्वल्स x2 सम वेक्टर, ये वेक्टर मैं अभी लिखता हूं और ये मैंने सिखाया होगा आपको कि किस तरह ये लिखते हैं। x4 फ्री वेरिएबल इनटू सम वेक्टर, ये भी वेक्टर अभी हम लिखते हैं, x5 इनटू दिस वेक्टर। सो x2 का कोफिशिएंट x1 में क्या है? 2 है, x4 का कोफिशिएंट 1 है, x5 का कोफिशिएंट -3 है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस वेक्टर। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 0। x3 का कोफिशिएंट x2 नहीं है, 0। x4 -2 है, यहाँ पे ये देखें, x5 जो है ये 2 है। x4 यहाँ पे कोई नहीं है, x4 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 कोफिशिएंट होगा, x5 यहाँ पे 0, x4 यहाँ पे 0 और x5 यहाँ पे 1। सो दिस इज द पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ योर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये देखें कि यहाँ पे x2 x3 x3 फ्री वेरिएबल्स हैं, दे कैन टेक एनी वैल्यू। अब ये अगर मैं u v और w अगर कह दूं तो आपका हर सॉल्यूशन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है u v एंड w का। अगर इन वेक्टर्स को मैं u v w कहता हूं तो मेरा हर
सोल्यूशन जो है Ax इक्वल 0 स्पेस का, जो कि नल स्पेस है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है u, v एंड w का। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि ये स्पैन ऑफ u, v एंड w है। सो दिस इज योर नल स्पेस। और इसी तरह हम नल स्पेस हमेशा आइडेंटिफाई फाइंड आउट किया करेंगे कि Ax इक्वल 0 को सॉल्व किया करेंगे, और Ax इक्वल 0 को सॉल्व करने के बाद हम उस सॉल्यूशन का, इफ द सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल, वी विल राइट डाउन द वेक्टर पैरामीट्रिक इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वन। और जिन वेक्टर्स का वो लीनियर फ्री वेरिएबल्स जो है, ये इनफैक्ट दे कैन टेक एनी वैल्यू, तो u, v, w का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये सॉल्यूशन जो है उसको स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स को हम क्या करेंगे कि ये नल स्पेस है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is very important concept, which is the basis for a subspace. A basis for a subspace H of Rn is a linearly independent set in H that spans H. इसका मतलब है कि दो conditions, और इसी concept को हम next lecture में generalized spaces के लिए भी define करेंगे कि दो conditions कौन सी हैं। A set S is said to be a basis of H if S spans H and S is contains linearly independent set. S is linearly independent. अब जितने बेसिस डिफाइन कर ली, जितने वेक्टर्स होंगे बेसिस में, वो हम कहेंगे कि डायमेंशन है सबस्पेस की। और ये मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। The columns of an invertible n by n matrix form a basis for all of Rn because they are linearly independent और span भी करते हैं। ये हमने by invertible matrix theorem जो है, ये हमें पता है कि अगर if the A is invertible then the columns of A are linearly independent and these columns of A spans Rn। अगर A का ऑर्डर n है तो columns of an invertible matrix always form a basis for the space Rn. One such a matrix is identity matrix. Identity matrix जो होता है वो In आपको पता है कि वो क्या होता है, 1 0 0 so on so forth, 0 सेकेंड एंट्री 1, अगर सेकेंड रो में लिखूं बाकी तमाम एंट्रीज 0। सिमिलरली लास्ट रो में nth जो है 1, बाकी ऑल एंट्रीज आर 0s। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये भी इन्वर्टिबल होता है, अपने आप का इन्वर्स है। तो इसके कॉलम्स जो हैं E1, E2, E3, En, मैंने शुरू से हम इनका यही नाम रखते आ रहे हैं। इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं Rn की, क्योंकि बाय यूजिंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम In जो है ईच कॉलम बिलोंग्स टू Rn एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। सो दिस इज अ बेसिस of Rn and such a basis is known as the standard basis of Rn. Find a basis for the null space. null space के लिए basis किस तरह determine करनी है। अब ये वही एग्जाम्पल है जिसको हमने null space हमने अभी सॉल्व किया था, वही एग्जाम्पल है, उसके लिए basis डिफाइन करनी है। अब ये इसका एचिलॉन फॉर्म था और ये मैंने सोल्यूशन जो है इस फॉर्म में लिख के आपको दिखा दिया था, और इनफैक्ट पिछली एग्जांपल में u, v, w इसका मैंने नाम रखा था। अब ये u, v, w इसका मैंने नाम रखा था, तो आप देखें कि ये वेक्टर्स जो हैं u, v एंड w ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप चेक कर सकते हैं, द आंसर इज यस, दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो नल स्पेस जो थी इसको हमने देखा था कि ये स्पैन था u, v, w का। अगर इसका मैं नाम u, इसका v और इसका w रखूं तो ये नल स्पेस को स्पैन तो पहले ही कर रहा था, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। मैंने आपको बता दिया कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट यू हैव टू चेक इट दैट दीज वेक्टर्स u, v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने अभी पढ़ा है कि बेसिस की डेफिनेशन, एक सबस्पेस है, अ सेट इज सेड टू बी बेसिस अगर वो सेट जो है स्पैन करे सबस्पेस H को
और उसके वेक्टर्स जो उसमें है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब ये u v w लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी कर रहे हैं नल स्पेस को, सो दीज वेक्टर्स u v and w, these vectors u v and w form a basis for the null space of A, where A is given this form। ठीक है, तो नल स्पेस की बेसिस हमेशा हम इस तरह डिटरमिन किया करेंगे। सिमिलरली हमें बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस भी हम निकाला करेंगे। बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस, फाइंडिंग अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस, और कॉलम स्पेस की बेसिस निकालने के लिए हम अपने मैट्रिक्स A को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे, और एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स के कॉलम्स, जिन जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होगा वो कॉलम्स जो हैं उन कॉलम्स को हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और जिन जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होगा वही कॉलम्स जो हैं बेसिस फॉर्म करते होंगे कॉलम स्पेस के लिए। लेट्स गो टू द एग्जांपल। फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस फॉर्म। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। अब B3 जो है, नोट दैट B3 इक्वल्स -3 टाइम्स B1 प्लस 2 टाइम्स B2। B3 ये है आपका, इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम नहीं है, क्योंकि B3 को हम लिख सकते हैं -3 टाइम्स B1 प्लस 2 टाइम्स B2। सिमिलरली B4 जो है 5 टाइम्स B1 माइनस B2। B4 जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें, बाकी वेक्टर्स जो हैं वो हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट बाकी कॉलम्स, यानी कि ये कॉलम B1, ये कॉलम B2 and this column B3। So the basis for column space of A consists of B1, B2 and B3। ठीक है, और इसी तरह आप हमेशा किया करेंगे कि अब इसको नोटिस करें कि ये ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में है और इसके पिवट एलिमेंट कौन कौन से कॉलम्स में हैं। फर्स्ट पिवट एलिमेंट ये है, सेकंड पिवट एलिमेंट ये है, थर्ड पिवट एलिमेंट ये है, और यही मैंने आपको बताया था कि पिवट एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्ड जो आपका कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को आप दैट कॉलम्स फॉर्म द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट रिजल्ट है द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बी केयरफुल टू यूज पिवट कॉलम्स ऑफ ए इटसेल्फ फॉर द बेसिस ऑफ कॉलम ऑफ ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। ये मैट्रिक्स तो ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में था, इसलिए मैंने B1, B2, B3 जो है वो वेक्टर्स लिख लिए बेसिस में, और सेट S का नाम, इसका नाम अगर मैं B रख दूं या S रख दूं, ये सेट बेसिस फॉर्म करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा तो आपने उसको एचेलॉन फॉर्म में करना है, तो जिन में एचेलॉन फॉर्म में जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होगा उसके कोरस्पॉन्ड आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के वेक्टर्स लेने हैं सेट बी में, दैट विल फॉर्म द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। यही रिमार्क जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है। सपोज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A is invertible, what you can say about column of A, about null of A? You have to do it yourself, and I will just give you a hint. Use invertible matrix theorem once again। ये invertible matrix theorem की आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन जो थे वो इसीलिए करवाए थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। So we are at the end of our lecture and I have some practice problems for you। practice problems क्या हैं? Question number 1 है, let V1, V2, V3 and P are the vectors from the space R3। Determine if P is in the column space of A। उसके लिए हम इस A जो है
वो ये मैट्रिक्स फॉर्म किया है, तो उसके लिए हम V1 V2 V3 इंटू P इसको सॉल्व करेंगे. इफ द सोल्यूशन सिस्टम हैज अ सोल्यूशन देन P will be in column space of A. If the system is inconsistent, then P is not in column space of A. Is P in the null space of A? A को जो कि इस तरह डिफाइन किया गया है, इसको P के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अगर तो नल वेक्टर आंसर आता है तो नल स्पेस में होगा, अगर नल वेक्टर आंसर नहीं आता तो नल स्पेस में नहीं होगा. Give integers P and Q such that null of A is a subspace of Rp and column of A is a subspace of Rq. You have to give the values of P and Q such that the null space of these two matrices are the subspace of these spaces Rp and Rq and so on and so forth. Column space के लिए भी आपने P और Q की values जो है वो देनी है, ठीक है, कि subspace होगी. आज के लेक्चर में हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्पेस ऑफ अ गिवन स्पेस, जो कि सबसेट होता है और वो 3 एक्सियम्स अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उन 3 एक्सियम्स को, व्हाट आर दीज 3 एक्सियम्स, के नल वेक्टर जो है वो आपका सेट H में ही हो, सबसेट जो है H उसमें हो. फिर कोई से भी 2 वेक्टर लें, उनका सम अप करें, रिजल्टिंग वेक्टर विल आल्सो बी इन H. Then take any scalar C, multiply with any vector from H, then the answer Cu must be in H. If these 3 properties are satisfied, then we say that the subset H of a vector space, let's say Rn, is a subspace of that space Rn. उसके बाद हमने, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्ड 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसेस जो हैं वो डिफाइन की हैं, एक नल स्पेस और एक कॉलम स्पेस. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव लर्नड इन टुडेज लेक्चर एंड यू विल बी एबल टू डू योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स योरसेल्फ. सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.